Assalamu alaikum and welcome to Music Chart. Today we have a very special guest with us. सुहेल वडाइट साहब ने इनको एक recent interview में मौजूदा दौर का तानसेन भी बोला. इन्होंने इनकी निकाल हसन बैंड के साथ और generally भी in creating infrastructure, in helping young musicians. His work has been extremely instrumental. I am very privileged to speak today with Nikal Hassan. Nikal, thank you so much for being here. Thank you for taking some time out. No problem. तो मुझे थोड़ा बताएं, when you moved back from Berkeley, from the Berkeley College of Music, what kind of music were you doing and what brought you towards this Nikal Hassan band style of music? So I went to Berkeley when I was turning 21, and my area of focus was jazz composition. So basically, because I had grown up around music from the 50s, 60s, 70s. So because of my father, I ended up invariably being just influenced by a lot of the music he listened to. And then when I was about 11 or 12, I got into more like current music, meaning कि मैं ज़रा अपने decade के artists को सुनना मैंने शुरू कर दिया, which included one of my early favorite bands was Dire Straits. And one of the first records my father got me was the first Dire Straits album, the white cover. So I started kind of there, and that was also how I got interested in playing guitar, because I used to play a bit of piano. My grandmother, on my mother's side, she was a classical piano player, so she would always be playing, stuff like Mozart and Bach and those kinds of things. So there was this classical thing that she had, but I wasn't really fond of it at that point. I was more into the jazz thing. But when I started trying to play a bit of piano, very basic level pe, then sort of like, I realized that some of the music I'm listening to now, which was the Dire Straits, it's all like guitar based, it's not piano music. So I just gravitated towards guitar, and then as I sort of like picked up the instrument, I just kind of like, there were no teachers or anything, so I was kind of self-taught. And in fact, because I'm left-handed, I'm not naturally right-handed, I'm left-handed. So initially I remember I learned it like this, like the way a left-handed person would learn. After about 6 months, I realized कि इसके तो गिटार ही नहीं मिलते यहाँ, तो मैंने फिर I just kind of like switched it and started learning it the way a right-handed person would learn. But actually my strong hand is my left hand, and that also kind of like helped me later developing like a strong left hand. So that's how that started. So I started out listening to more guitar-oriented stuff, and then very quickly, as soon as I went to Berkeley, I was listening to a lot of that stuff, but I was listening to a lot of jazz rock artists, especially groups like Weather Report, then Tribal Tech. वो अभी भी like it's still some of my favorite music. जब मैं वापस आया, so one thing I learned from Berkeley was something about how things are put together, because वहाँ हमें we would get exposure to different cultures. I learned about Astor Piazzolla's music while in Berkeley because I had Argentinian friends, and so I learned about his stuff. I had Spanish friends, so I learned about Paco de Lucia. I had, friends from like the UK, तो मुझे उनके musicians का पता चलना शुरू हुआ. Some of them now are actually gigging professionals and big names in the UK jazz scene. Those people were also in Berkeley at that time. So I just basically started realizing that the only way for you to have some kind of integrity or some kind of sort of like something that is जो आपकी है, which represents your identity, is really to go back to जो traditional material आपकी country का है. Bela Bartok, जो the famous composer, was known for like saying that folk songs
are the real sort of like DNA, the real blueprint of where music evolves to. And he would often use folk music from his country to build themes or to introduce certain themes. So that those kinds of ideas were in my head, and because I really loved Weather Report and Miles Davis, every time he would kind of like get comfortable with what he was doing, he would just completely abandon it and then just start something completely different. And every time he would take players who had very strong roots in different cultures. And that idea carried over to Weather Report. And so I thought, okay, there's no point trying to copy note for note what they do, because there's somewhat ho gaya already. But what's the core idea, and how do you sort of like take that and not destroy it? And that's how, when eventually when we came to setting up the band, that was kind of like the, still is the core foundation. और उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जब अपने ट्रेडिशनल काम को उठाते हैं तो now you have to kind of like complement it. So the only way to do that is to work with people जो actually वो चीज़ करते हैं, and it's not like oh I'll also do this, but वो actually वो अगर कोई फोक आर्टिस्ट है तो फोक ही गाता है, अगर कोई कव्वाली करता है तो कव्वाली ही गाता है. ये नहीं कि वो मुझे जी नुसरत के भी 3 गाने आते हैं तो मैं कव्वाली करता हूँ, जिस तरह आजकल हो रहा है कि बहुत सारे आपको पॉप आर्टिस्ट मिल रहे हैं जो कव्वालियाँ इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज कव्वाली इज़ पॉपुलर नाउ. So that I didn't do. Everybody who came through was actually a practitioner of either the classical thing, and now with Shahzad in the group, वो कव्वाली ही करते हैं, उनका अपना कव्वाली का group है. So all the people who came through were the singers, were all from that traditional discipline. And then we had पप्पू साहब जो थे, उनका बहुत ही सेंट्रल रोल था, बिकॉज एक तो चले आपका मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट वोकल हो गया, अब आपने जब मेलोडीज़ बजानी, जब वोकल ख़त्म होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी कोई ऐसी होनी चाहिए जो आपके कंट्री की या आपके एरिया की हो. एंड बिकॉज ही वॉज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड सेशन प्लेयर और इन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया, तो इनकी बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे ग्रुप पे. इस तरह हम लोग साउंड ही ना करते अगर ये ना होते. तो ये जो कॉम्बिनेशन थी ना जावेद अख्तर की, मेरी और पप्पू साहब की, इसने असल में इस ग्रुप की जो साउंड अब लोग जानते हैं वो बनाई. और सिंगर्स आते जाते रहे, लेकिन कोर राइटिंग जो थी ये हम लोग, ये 3 लोग करते थे. और फिर जब शुरू में था कि हम लोग सोलोज अपनी डबल नहीं करते थे, and Pappu Saab used to do his own solos, I used to do my own. But then on the second album, I was like, okay, we need to utilize this idea as well and not have 2 separate solos for flute and for guitar, but have one combined solo. कि वो इकट्ठे हम करते हैं उसको ट्राई. सो फिर वो और उस डिसीजन की वजह से हम लोगों की वर्क प्लेस काफ़ी स्लो हो गई मेरी वजह से, बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल लगता था उसको लर्न करना. फ्लूट की बजी हुई चीज़ों को गिटार पे सीखना वो बड़ा हार्ड होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसने क्लासिकल, देसी क्लासिकल नहीं सीखा हुआ, जो कि मैंने नहीं सीखा हुआ. तो मैं तो एक बेसिक रॉक प्लेयर और यू नो काइंड ऑफ लाइक जैज इन्फ्लेक्टेड रॉक, दैट्स व्हाट आई डू. सो आई वुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग, बट उसको फिज़िकली रेप्लिकेट करना दैट वाज नॉट इजी, बिकॉज वो उन्होंने भी इतनी प्रैक्टिसें करके अब इस तरह बजाते हैं. तो फिर आप वो फ्रेजिंग और एक एक रिदमिक उसमें जो चीज़ है वो, उसको स्लाइड किधर है, ट्रेल किधर है, 2 ट्रेलें हैं, 3 ट्रेलें हैं, पहला नोट पिक है कि नहीं पिक, पुल ऑफ किधर है, हैमर कहाँ है, कहाँ नहीं है, इतनी डिटेल में वो फिर एक एक फ्रेज पे आपको करना पड़ता था. और वो अभी भी इसी तरह है, अभी भी मैं उसी तरह फंसता हूँ, बिकॉज मेरे लिए क्लासिकल बजाना ईजी नहीं. लेकिन कोई क्लासिकल बजाने वाला बंदा हो उसको ये चीज़ें हार्ड नहीं लगेंगी, लेकिन फिर उसको ये जिस तरह हम म्यूज़िक हमारा अरेंज हुआ है मे बी उनसे वो उस तरह कभी भी नहीं होगा. सिंगर्स के साथ भी काम करना, बिकॉज वो क्लासिकली ट्रेंड है, तो वो सारा काम जो था जावेद और वो उनके साथ कि इधर इस तरह कर लें, इधर इस तरह कर लें, तो वो एज अ टीम हम सॉर्ट लेके उसको चलते थे. और सारे जो गाने कि अब कौन सा करें, किस राग में करें, मैं उन्हें कहता था अच्छा कुछ अब हमें कुछ सोचना चाहिए, लेट्स डू समथिंग लिडियन या एमन में कुछ करते हैं. और मैं
कोशिश करता था कि उनको मैंने कहा हुआ था कि हमने कोशिश ये करनी कि हम एक ही राग में बार बार नहीं काम करेंगे. विल कीप चेंजिंग द साउंड ऑफ द थिंग, सो नो वन सॉन्ग साउंड्स लाइक अनदर सॉन्ग. तो ये पहले से मैंने इरादा किया हुआ था कि इस तरह इसको सेटअप मैं करूँगा. इफ़ आई एम गोना राइट इट देन व्हाई डू आई वांट टू कीप रिपीटिंग द सेम सॉन्ग. मेरा एम था कि उसकी डाइवर्सिटी म्यूज़िक की जो है ना उसको मैं एक्सप्लोर करूँ, मैं उसको रिपीट ना करूँ. वो वाला सीन हो रहा था कि वो लाल मेरी पाती करना है और एमन में ही रखना है, तो वो आई डिड जस्ट वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. एंड दैट इज़ हाउ वी केम अप विद ऑल ऑफ दोज सॉन्ग्स आर इन डिफरेंट ragas. Darbari is, you know, natural minor. Yali is like a weird scale. It's this scale called Virag Todi. It's a 5-note scale, and yeah, so all these interesting sort of like combinations of modes and ragas and scales. So that's how the template of the first and all the other records, jo classical wali, that's how they came about. And if you look at it, like I often just leave it to the name of the raga, because I know that a lot of people who are interested in classical will enjoy this, but I also know that there's a lot of people who haven't listened to it, and so they should know that ये इस राग में set to years. And there's some unusual ones जो कि इतने common नहीं है. Just the third album पे चंपा कली है, that's not a very common scale heard here. It's a South Indian scale. उसमें वो set हुआ हुआ है. Yeah, so I mean उसकी working जो है, like the whole idea of how to do it, that's how it was set up. You know, you actually hear this in your music, is, you know, this sort of this drive to perfection and this constant sort of experimentation and sort of constantly fine tuning. Wow. You come back to Pakistan, this is 95? 95, yeah, and we right away started working on building a studio. I could have stayed on longer in the States, but then, you know, I would never have been able to set up the studio. So my parents actually took that decision. उन्होंने कहा कि अब तू कर तो रहा है, लेकिन जब तू वापस आएगा तो तू कुछ करने के लिए नहीं है, तो यू नीड लाइक अ स्पेस टू रिकॉर्ड योर आइडियाज़ एंड टू डू थिंग्स. एंड तो ये उनकी एक्चुअली सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ. नहीं तो आई थिंक ऑन माई ओन तो you know I would have done what most people do, stayed there, tried to kind of like make a band there or whatever. But I thought about that कि ये बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोगों ने कहा कि वापस जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये वो. बट मैं कहा नहीं यार, मैंने I want to do something a little different. और plus you know I have a really nice house. Parents हैं मेरे I'm very good friends with my parents as well. तो मेरे वालिद साहब जो थे, सूद हसन साहब, तो we just used to hang out and listen to lots of music. He used to play me things that he was listening to. And I remember hearing Brad Mehldau because of him. EST I heard because of him. Then Madeline Peru I heard because of him. उन्होंने मुझे सुनाया, तो ये नहीं कि मैं उनको सुना वो मुझे सुना रहे होते थे. So he was an avid reader and listener and very much into books and music. उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली फिर मैं भी सुन लेता था. तो मुझे याद है कि मैंने जब 16-17 साल का था शायद या 15 साल का था, तो मुझे आई स्टार्ट लिसनिंग टू ग्रुप्स लाइक आयरन मेडन एंड डीओ एंड स्टफ. और एक दिन मुझे याद है मैंने मेडन की समवेयर इन टाइम वो लगाई हुई थी मैंने गाड़ी में. तो वो होता था ना कैसेट अंदर रह जाती थी, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करो तो वो एकदम चलना शुरू हो जाती थी. आई डोंट नो इफ एनीबॉडी कैन. Yeah, because the tape would be inside the deck and you didn't eject it. So you technically were supposed to eject it when you turned off the thing, right? I didn't eject it. So the tape was in the car. और सुबह का टाइम था, पता नहीं स्कूल जाना था या कॉलेज जाना था. वो गाड़ी उन्होंने ऑन की है तो वो एकदम वो मेडन का समवेयर इन टाइम करके आया है. मैंने ये क्या सुन रहे हो तुम, को म्यूजिक है, शोर है ये. मैंने कहा नहीं ये मतलब अपने वाइब में ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है. तो बट उन्होंने वो दैट्स द ओनली टाइम ही एक्सप्रेस्ड डिस्टेस्ट फॉर क्योंकि वो ज़रा इतने वो लाउड गिटार्स वगैरह सुनने के आदी नहीं थे. बट ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड अदरवाइज. लाइक ही द लास्ट थिंग ही बॉट मी वॉज अ पॉर्क्यूपाइन ट्री बॉक्स सेट. तो लाइक
Yeah, नहीं वो सारा कुछ सुनते थे. He had heard all of this stuff. So for him, मतलब एक बंदा जो है वो माइल्स डेविस और उस लेवल का म्यूजिक सुन रहा है और तो उनको अब मैं क्या ही अब मैं मतलब मैं कुछ कह तो नहीं सकता था. उनको कह तो ठीक ही रहे थे. तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ये भी सुन लो, लेकिन है ये रोला ही है तो एंड में जाके तुम भी तंग आ जाओगे. एंड ही वाज राइट. एंड आफ्टर लाइक अ कपल ऑफ इयर्स आई गॉट आउट ऑफ दैट. आई स्टिल लाइक इट, क्योंकि वो एक चाइल्डहुड की होती है ना मेमोरी की, जो आपने म्यूजिक बचपन में सुना होता है, आप उसकी आपकी मेमोरी होती है. तो आई इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू मेडन रिकॉर्ड्स है. तो इवन दो ही डिसअप्रूव, वो मुझे फिर भी जब वो जाते थे कहीं तो वो मुझे उन बैंड्स की एल्बम्स ला के दे देते थे. Like he just buy it of his own accord. Like it wouldn't be कि मैंने पूछा है उनको. मैं वापस आते थे तो मेडन की एल्बम है, डायर स्ट्रेट्स की एल्बम है, जेपलिन की एल्बम उठा के ले आए. 4 भी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, वो भी दैट ही बॉट मी. सो या सो लाइक अ वेरी अमेजिंग रिलेशनशिप. बड़ा मैं लकी रहा हूँ, बहुत लकी रहा हूँ. बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनकी अपनी पेरेंट्स के साथ दोस्ती ही नहीं है. तो ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और लोगों को इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तो रहेंगे नहीं. और जब आपका म्यूज़िक और बुक्स जैसा शौक़ हो ना, तो वो आप ओल्ड एज तक एंजॉय कर सकते हैं. क्योंकि वो इस तरह तो नहीं कि मैंने गोल्फ खेलने जाना उनके साथ या मैंने क्रिकेट खेलनी है. तो ये एक बड़ी चीज़ मैंने लेट लाइफ में, बिकॉज वो हमेशा थी ना, तो मैंने फॉर ग्रांटेड लिया. आई जस्ट थॉट एवरीबडी हैड दैट रिलेशनशिप विद देयर डैड एंड देयर मदर. माई मदर इज़ अ लिटरेचर बफ, वो शेक्सपियर स्कॉलर भी हैं. सो शी इज़ इनटू दैट वर्ल्ड. Abu was into this, writing, journalism, books and music. So I just thought this is how everybody is. I didn't realize कि बहुत ही unusual household का मैं product हूँ. I really didn't realize it and I always took it for granted. अभी भी वो for granted लेता हूँ. तो बस वो फिर that thing kind of like really उसने मुझे सबसे ज़्यादा influence किया. Like the wide nature of books and music and knowledge that both my parents possessed, that influenced me to also have a open set of ideas when it came down to this. मुझे भी okay, how do I sort of like take that idea जो कि मेरी खानदान में है and उसको मैं किस तरह expand कर सकता हूँ, and also how do I leave something behind जो लोगों को positively मुझे वो याद रखें कि इसने कुछ किया अपने टाइम के साथ. लाइक दिस गाय जस्ट डिडंट वेस्ट हिज लाइफ, कुछ तो इसने किया. सो इवन इफ इट्स वन सॉन्ग, दैट्स बेटर देन नथिंग. तो आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग लाइक दिस व्हेन आई वाज लाइक वेरी यंग. तो बस वो उसकी वजह से देन एवरी डिसीजन आई टुक इज बेस्ड ऑन दोज मोटिवेशंस के how can I do something where I engage other people, I kind of like stay true to the things that make Pakistan and this part of the world very unique and very underappreciated, and how do I become a good communicator in my music कि वो music जो है वो लोगों को pull in करे. You hear that in your music throughout, like take Meg for example from your third album. It's raining outside right now. It's like simple idea है कि बारिश हो रही है और वो आप उसको express करते हैं. I also think in terms of like a coloring canvas, like a palette. So like let's say the song itself is like a bunch of different colors, and like the music has different aspects to it. So like if the drums are kind of like the foundation, so that might be the outline, and then you've got like a bit of green here, you've got like visual. I want people to feel that when they hear the songs, it's not dry sounding, it's very lush and sort of like evocative. Like it could be like the background to a visual, like a movie or something in certain cases. So evocative hona chahiye, and that's what all good books do, all good movies, all like they take you to another world, right? So that kind of like is my thing, that, and because I don't want to repeat the same kind of song again and again, so I try and make sure कि वो अच्छा हो, like वो बुरा ना मैं कर जाऊँ उसको, because
I'm not really going to go into that territory quite the same way ever again, right? So, you know, if you do like a song like Kanare, you're not going to top that, so forget it. Kuch aur likh lo ab. You know, you're not going to be able to, you'll just end up repeating it and it'll sound like a bad copy, even if you do it. तो मेरी वो एक रही है कि कम करो काम लेकिन अच्छा करो. You moved back to Pakistan. Yeah, 95. 95. You were setting up a studio. What is the first gig that you pick up? Is it playing with Junoon? No. The first recording, which also became, ironically, a hit, and actually I didn't engineer it. We had like a couple of engineers working at the studio. I didn't know how to record and mix at that point. I had to learn it basically on the fly. तो वो था प्रिया परवेज का पतंगबाज सजना. वो पहला गाना था जो इधर रिकॉर्ड हुआ था, और वो it just did really well, and like it launched her. But they recorded it at my studio and they even shot the video at the studio. But I actually didn't have anything to do with the writing of the song or the recording. वो उधर के उस वक्त जो engineers थे उन्होंने की थी. That was the first big one. And then as we stuck around, we had जो सरगम थी अदनान समी की एल्बम, उसके vocals भी यहाँ हुए थे. अदनान समी ने इधर आके किए थे. And then we did, Junaid Jamshed did some work here, Ali Haider did work here. Yeah, that Faraz Anwar record. Yeah, Jadoo. Yes. That was done here. Oof. I mean, just about everybody ended up here. It's easier to tell you कि कौन नहीं किसने किया था. So like Nusrat Saab never ended up here because he had a studio right next to our studio. Nusrat Saab का भी studio था. और अतारुल्लाह ईसा खेलवी ने later on मेरे opposite एक studio लगा दिया था. I would love to learn about your experience touring with Junoon. Was that your first time sort of playing to like a big audience, because you know they were very popular at the time? नहीं वो जो for example हमने जो 2001 में जो मेरा concert था पीट लॉकेट के साथ, that was completely packed, huge, about 3,000 4,000 people at that venue. So मेरा उस वक्त already एक sort of नाम बन रहा था as like a new face on the scene. So जुनून का crowd बिल्कुल different था जो मेरा music लोग सुनते थे. So my music tended to be more younger and then middle-aged people, and theirs was a very much a younger audience. कॉलेज गोइंग उनका था, तो उनका क्राउड काफ़ी डिफरेंट था. तो उस तरह तो अल्टीमेटली तो जब आप स्टेज पे जाते हैं तो फिर लोग आपके गाने ही सुनने आए होते, तो ऑब्वियसली उनके इतने अच्छे अच्छे गाने थे. तो दे हैड अ ह्यूज कैटलॉग एंड आई स्पेंट लाइक अ ईयर फ्रॉम आई थिंक 2006 is that year that I spent with them. That's much later. Yeah, exactly. That's like much later. That's when we put out some Puran and we were already touring. Okay. They needed a bass player because Brian had to go back to the States, and they were left without a person. And they kind of wanted to get someone जिसकी एक अच्छी reputation हो, एक I guess scale wise भी कोई बंदा ऐसा हो जिसको, क्योंकि Brian की bass lines बड़ी अच्छी crafted है. So they wanted someone who could kind of like do that, learn the stuff, and also be presentable. And obviously वो एक iconic band है. So they asked me कि तू कर ले, क्योंकि दोस्ती भी थी तो वो उस तरह भी comfortable थे वो. So that's how I ended up playing bass for them. Yeah. But that's kind of like the only time I played bass for a group. The only other 2 instances I can remember where I did play bass was I did it for a song for Faraz Anwar, for one of his songs, and then there was a group called Sahil, जिसमें गंबी को मैं लाया था ड्रम्स के लिए. जी वो वाला, वो मेरे दोस्त का था, उस पर भी फिर मैंने बेस प्ले की थी. बट आई एम नॉट ऑब्वियसली, मैं कोई बेस प्लेयर तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत जितना हाथ पाऊँ. एंड ज़ेबर अनिया के चौक पे द इनिशियल recordings we did, which got them kind of like, I did the bass for that as well. Cool. Yeah. Oh, and Adat. Adat. You're playing bass on Adat? Yeah. Wow. So would love to talk more about the Mikal Hassan Network of Sparks concerts, because you know, एक तो
just that lineup. एक musician के बारे में अगर आप बात करें तो they're like legends in their own हाँ, field. हाँ. तो would love to learn about how it came about and वो इस तरह हुआ था कि 95 में जब मैं वापस आया था, I started writing instrumental tracks, guitar instrumentals, and बड़ी bizarre सी story है. It's quite crazy. My dad had a company, advertising agency. They had done a merger with this French company called Publicis. So they had merged, and the guy who came down from Publicis in, I believe it was Switzerland, he came down here, and he came to our house for dinner. So my dad had put on like a jazz record, and this guy was saying, "Oh, you're like a jazz fan." So my dad said, "Yeah, I'm a huge jazz fan." So my dad was like, my son's a guitar player. He's just come back from Berkeley, and मैं नए लिख रहा था instrumentals. So this guy was like, "Oh, that's interesting. Like I'm a squash partner with this guy who's apparently a very well-known musician. तो मैं उसके साथ squash खेलता हूँ." तो my dad was like, "अच्छा कौन है?" So he's like, "This guy called Billy Cobham." So my dad was like, "The Billy Cobham, like the drummer?" He's like, "Yeah." So my dad had like Cobham's records. So he pulled them out. Like, "This guy?" He's like, "Yeah, this guy." So that guy was basically playing squash with Cobham, and so my dad, without asking me, just gave him some of my recordings. Next thing I know, I got a email from Cobham saying that your dad's friend sent me this tape. ये टेपों का ज़माना था, right? So, and I've heard it, and like it's just like I'm just blown away, and like, who are you? And like, कहाँ हो तुम? So he's like, "Come to London. I'm touring there, so come and meet me." So from 96 till about 2000, I would go every summer to London, meet Billy Cobham, hear their entire group, and even did like he got me into the Guildhall School of Music on a short-term scholarship, and we ended up playing the first tune I'd ever written, which was this track called Square One. We ended up playing that as his masterclass with me playing with him, and that was the first time I played with him. So the idea was that he said that, "Well, I'll produce the record you're working on, and we'll put it out on Eagle Rock Entertainment," which was like this production company that he was signed to. So that was the plan. But हुआ ये कि वो 3 साल के period में I kept sending him all my songs, and finally the time came when he said, "Well, we should record these." So he came here, spent like about a week, 10 days, and we were supposed to record him playing drums, and then the tracks that I'd already done. But for some reason he had thought that जो सारा कुछ बज रहा है ना, like the keyboards and the bass lines and drum parts, like there was an actual band which would be playing. So he didn't understand कि ये लाहौर है, इधर वो तो musicians हैं ही नहीं. I had like written all that stuff on my own, programmed the drums, played the keys, played the bass lines, all of that. So I explained to him, I was like, no, there's no group. It's like I've written all this stuff, and like and then he's like, "Well, the recordings I do, I don't play to a click track." So that was the problem, because all of this stuff was done to a metronome. Obviously, वो complicated time signatures थे and all that. So anyways, we ended up recording him, but it didn't, like, because it wasn't his thing doing it that way, so we couldn't do anything with it, and so that thing kind of like fell through. And in 2000 I was in London, and I get a message from Pete Lockett, who I didn't know who he was, saying, "Okay, I've read about you on Billy Cobham's site, and I just checked on your site, and apparently you're in London." And I was like, "Yeah." So he's like, "Let's meet." And
I'm a multi-percussionist and I've heard a bit of your work and I'm really sort of like impressed and we should work together. So I was like, okay. So I met him and he said that I do a lot of work with the British Council and I do a lot of clinics for them. So I was like, okay, let's ask the British Embassy and the British Council if they would be interested in getting you down to Pakistan. So he hadn't ever come to Pakistan before. So they said yes, we'll do it. हम करते हैं. So we put in a request, and they said yeah, we'll do the tour. So Pete Lockett brought in Nana Sibo, and he brought in his engineer Paul Asprey, who was at that point I think the head of engineering at the South Bank in London. So once that got in motion, I was suddenly struck by the idea that okay, wait, Pete Lockett has trained in South Indian percussion, Karnataka उसने स्टडी किया हुआ था, और हम लोग जो हैं, like I'm doing all this instrumental stuff, तो we need to have something there जो कि Indian classical के साथ work करे. Because what is he going to play? Because he used to play traditional drum kit but sitting down. I don't know if you've looked at the videos, he's sitting down and playing. Oh wow. Yeah, वो जिससे तबला नहीं बजाते, उससे ज़मीन पे बैठ के. Exactly. That's how he used to play. Yeah, exactly. His kick drum was over here. It wasn't like पाँव पे नहीं था, हाथ पे था. Oh, If you look at the videos, you'll see it. So I was like, अच्छा, अब क्या करें? जावेद ने मुझे कहा कि इसके लिए मटीरियल ही हम सिरे से कुछ नया ही बना लेते हैं, बिकॉज ये जो तूने गिटार इंस्ट्रूमेंटल वाला म्यूज़िक किया है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जिस तरह बंदा बजाता है तो कोई फ्रेश चीज़ ही बनाते हैं, वो बेहतर आइडिया होगा. सो आई वाज लाइक एब्सोल्युटली. द फर्स्ट ट्यून वी रोट वाज लेट मून. दैट वाज द फर्स्ट वन वी रोट. देन वी रोट संपूर्ण, because we were like कितने musicians हैं, like 7 or 8 guys on stage. Okay, we'll write a tune with this idea, okay, it starts out in 7/4 and goes to 7/8 and then everybody has a solo and there's 7 people on stage. Cheesy सा एक idea था. So to do that, and then we said okay, let's take something, कोई अमीर खुसरो की कोई composition देखते हैं, and वो यारेमन बेया जो है, that's a फारसी कॉम्पोजिशन है, बड़ी वेल नोन है. वो फिर हमने से सिलेक्ट की. फिर ये याली वाली जो थी इसकी बंदिश सलामत अली खान साहब की, ये भी जावेद ने मुझे कहा था ये वाली करती. फिर तक अब गाएगा कौन. और उस वक्त एक परकशनिस्ट था यहाँ अशफाक, जो रेडियो पाकिस्तान में काम करता था. ही सेड कि मैं एक सिंगर को जानता हूँ बड़ा अच्छा है, आप उसको ट्राई करें. सो ही ब्रॉड इन रियाज, एंड रियाज साहब ने फिर ये जो 4 गाने हैं ये उस वक्त हुए थे. ही जॉइंड इन बिकॉज वी वर लाइक यार एक वोकल अगर हमने देसी क्राउड के लिए बजाना है तो हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे तो उसकी लिमिटेड एक, अब इतनी दूर से एक बंदा आ रहा है तो एक ऐसी यूनिक चीज़ डिज़ाइन की जाए जो कि लोगों से भी कनेक्ट करे लेकिन डिफरेंट भी हो. यू नो, इट्स नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल शो, बट इफ़ यू हेयर दैट फर्स्ट कॉन्सर्ट, there's a bunch of percussion features and there's a bunch of instrumentals in that show, and यही 3 या 4 vocal गाने. So that tour, when it finished, we had 3 shows. जब वो ख़त्म हुआ तो then everybody went back to the studio and we decided कि इसको आप properly record करते हैं. और फिर जब निकल गया पीट लॉकेट तो हमने कहा कि यार अब हमारे पास 4 गाने हैं तो we need to have more songs. So then we wrote, Sajjan I had lying around for years and years, that intro I had sort of like written that and I hadn't done anything with it. उसके next को मैंने part नहीं बनाया हुआ था. वो पे जावेद ने आके जो शाह हुसैन की पोइट्री है वो उसने बैठ के मेरे साथ किया. So really that first album वो जावेद और मैंने मिल के लिखा. पप्पू साहब फिर आए, फिर उन्होंने अपने parts वगैरह ऐड किए, फिर ये वोकल्स वगैरह आए सारे, और इस तरह फिर जाके हमने वो पहला एल्बम रिकॉर्ड किया. वो लेकिन जैसे ही एल्बम हमने रिकॉर्ड किया, वी मिक्स्ड इट, फिनिश्ड इट, वी हैड लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन लेबल एज वेल,
and the initial recording was with Riaz singing it. In 2003 हम रियाज साहब को ले गए थे नॉर्वे. उधर एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद it became kind of clear कि इनके साथ काम करना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों के लिए. So we came back, had to let him go. जावेद because उन दिनों में वैसे ही चक्कर लगा रहा था स्टूडियो के, because he was like related to him. He said कि you know I know all the songs, तो आप मुझे ट्राई करें. And that's how he started singing, and this is why जावेद की एंट्री 2003 में हुई है. उसका पहला शो जैसे मैं आपको बताया 27 जुलाई 2003 में लहमरा में, वो पहला शो जावेद के साथ हमने वहाँ किया. तो उसका जावेद का पहला शो था हमारे साथ. And then he stayed with us for good 6-7 years. We did 3 records with जावेद बशीर. बट वो जो पहला वाला था वो दोबारा सारा मिक्स हुआ, दोबारा सारा उसके वोकल शोकल रिकॉर्ड हुए, बिकॉज वो रियाज वॉज नो लॉन्गर वर्किंग विद अस. सो वी कुडंट पुट आउट समथिंग जिस पे वो है ही नहीं. मतलब लाइक वी कांट हैव हिम ऑन द शोज बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द गाय. तो इट डिडंट मेक सेंस कि यू रिलीज अ ब्रांड न्यू रिकॉर्ड विद द सिंगर हु इज नो लॉन्गर देयर. सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो भी जो है वो रब्बा की है. इट्स नॉट सांवल वीडियो. द सांवल सॉन्ग वो अहमद अली भट्ट ने एक ड्रामा वो कर रहा था उस वक्त. उसमें सारा गिलानी थी, फवाद था, अहमद वाज लाइक प्रोड्यूसिंग इट और डायरेक्टिंग इट और समथिंग. एंड इन्होंने मुझे कहा कि तू ये गाना हम यूज़ करेंगे और उसमें हम ड्रामे की फुटेज लगा देंगे एज द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. सो दैट्स हाउ दैट सॉन्ग एंडेड अप विद देम, विद दैट ओनली वर्जन जो रियाज ने गाया हुआ. अगर आप वो गाना गौर से सुने तो उसमें ड्रम मशीन बज रही है, बिकॉज वो डेमो है. तो वो एक अर्ली वर्जन थी उस गाने की. बट बाय द टाइम हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, तो तब तक रियाज साहब रहे नहीं थे, तो जावेद ने वो फिर गाया. फिर वो गाना निकला, लेकिन उसकी ऑफिशियली हमने वीडियो कभी भी नहीं की. रब्बा वाज द फर्स्ट वन जिसको नोट किया गया था. सांवल उस ड्रामे की वजह से और सारा गिलानी और फवाद की वजह से वो वैसे लोगों को बड़ा पसंद आया. संपूर्ण एल्बम पे वो वाहिद सॉन्ग है जो एक्चुअली एक ट्रेडिशनल क्लासिकल सोर्स का नहीं, क्योंकि रियाज साहब वो वाहिद गाना था जो वो जब वो आए हैं वो गाना वो उन्होंने कहा कि मैंने ये गाना करना है. उन्होंने बताया कि ये कॉम्पोजिशन मेरी है और ये वर्ड्स जो हैं उनके एक दोस्त थे फरत बादशाह, उनकी पोइट्री है. सो वो पूरे एल्बम में वो एक ऐसा गाना है जो किसी ट्रेडिशनल सोर्स से नहीं है, वो एक कंटेम्प्रेरी किसी ने लिखा हुआ है. तो उसकी कुछ स्टोरी ऐसी है, लेकिन बिकॉज वो रहे नहीं तो फिर उसके बाद वो फिर जावेद ने आके गा दिया. तो ये उसकी बैकग्राउंड सारी है. Yeah, would also love to understand how you begin working with Javed Bashir. राइट आफ्टर रियाज साहब गए हैं तो जावेद साहब की एंट्री हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहते थे कि मुझे ये सारे आपके सॉन्ग मैंने सुने हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव हैं, तो मैंने आपके सारे ट्रैक याद भी किए हैं और ये वो. सो ही काइंड लाइक न्यू द थिंग एंड वी वर इन अ पोजीशन कि हमारी एल्बम की बात एक अब चल रही है. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड रेडी है और हमारे पास अब वी डोंट हैव अ वोकलिस्ट जिसके साथ हम ये कर सकेंगे. Is it true that Shoaib Mansoor gives you the name Sampuran? हाँ, वो क्योंकि शोएब साहब कर रहे थे अपनी अनारकली और ये सुप्रीम इश्क वाले प्रोजेक्ट्स वो कर रहे थे. सो दे वर यूजिंग आवर स्टूडियो और मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा था. और आई थिंक उनमें जावेद को ही मैंने सजेस्ट किया था. एक सरगम वाला पार्ट आता है. बिल्कुल. तो शोएब साहब को मैंने कहा था कि जावेद को ट्राई करें, वो अच्छा कर लेगा ये. और इनका एक और भी था, उससे पहला प्रोजेक्ट जो कि सुप्रीम इश्क वाला था, आई थिंक उसमें रियाज साहब गा रहे हैं. मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई बिलीव उसमें रियाज साहब थे. और फिर जब वो गए हैं जावेद आया तो फिर ये नारकली वाला सॉन्ग जिसमें मान अली भी है जी, उस पे जावेद की वो सरगम है. एंड आई बिलीव शबनम मजीद ने बिल्कुल मेन गए पार्ट. काफ़ी टाइम हो गया इस बात को. बिल्कुल. तो एल्बम ये रेडी था और मैं शोएब साहब को मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये पूरा एल्बम मैंने उनको सुनाया, उनको बड़ा पसंद आया. तो मैंने कहा इसका कोई नाम सोचना चाहिए. तो लेकिन मैं नाम चाहता हूँ ऐसा जो कि ज़रा देसी ट्रेडिशनल क्लासिकल से भी जुड़ा हो और ऐसा हो जो कि ज़रा यू नो सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिव हो कि मटेरियल किस टाइप का होगा. तो उन्होंने कहा कि तुम संपूर्ण रख लो नाम, क्योंकि जो 7 नोट्स का जो राग होता है उसको संपूर्ण राग समझा जाता है.
और तुम्हारे लाइनअप में हैं भी लगभग 7 लोग ही हैं. Hmm. So that's how that record title came out. And then from that, the next one was Saptak, which is an octave, 8. Hmm. And the next one is Andhol. So they were all these classical terminologies जो फिर मैंने, I just kept that theme for all these albums क्योंकि सारी classical based थी, सारी बंदिशों पे based थी, रागों पे based थी, तो मैंने कहा चलो ये एक अच्छा तरीका है इसको identify करने का. Right. So that's how it happened. Vital, you then release Sampuran. I'm not going to say anything. I'm just going to read out an excerpt from Qasim Moini's review of Sampuran, which says, I have written about the timeless earthy quality of this record innumerable times, so why repeat myself? One of the greatest Pakistani records ever produced, able to compete with the best the world over. Let's hope there's more to come from Mikal and his band of merry pranksters. Any thoughts on Sampuran 21 years later and sort of the kind of impact it has? I'm just surprised that people still, talk about the record. And uska ek acha, that record really changed the landscape for music coming from Pakistan. I think uska impact, uska influence बहुत है. Because वो उससे पहले जो म्यूज़िक आ रही थी, it was really sort of like pop based. ये ट्रेडिशनल वाला सीन जो आउट हो गया हुआ था, ऑल दीज ओल्डर आर्टिस्ट जो कि पीटीवी के दौर के आर्टिस्ट थे, वो सॉर्ट ऑफ न्यू मीडिया में आ नहीं रहे थे. इट वाज मोस्टली दीज यंगर पॉप बैंड्स, जुनून था, स्ट्रिंग्स थे, नाज़िया ज़ुहैब का एक दौर था, वो पॉप की तरफ सारा कुछ जा रहा था. एंड इट हैडंट रिटेन ट्रेडिशनल रूट्स. जब ये एल्बम आई है तो तब फर्स्ट टाइम क्लासिकल सिंगर्स को, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो प्लेयर्स जो इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स लोग काम करते थे, वो फ्रंट पे आए. ये एक बहुत बड़ा चेंज था और वो उसी टाइम वो चेंज आया, उसके बाद नहीं आया. अनफॉर्चुनेटली वो वापस उसी पॉप वाली चीज़ पे चला गया. 20-30 ईयर्स लेटर वही फार्मूला वापस आ गया कि जो हमारे जो वर्किंग क्लास म्यूजिशियंस हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको अभी भी जगह नहीं दी जाती. इस बैंड में सारे म्यूजिशियन जो थे, एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था ऑफ दीज डिफरेंट सॉर्ट लाइक इन्फ्लुएंसेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो कि मिल के काम करते थे. और इसीलिए वो एल्बम इतनी, वो सारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फिर एक अच्छी चीज़ बनाता है कि उसका एस्थेटिक जो है वो आप डिटर्मिन करते हैं कि उसकी साउंड, उसकी वो वाली चीज़ें वो आपके हाथ में होती हैं. उसका कंटेंट जो है, जिसने करना है, गाना है, जिसने बजाना है, वो फिर वो सजेस्ट करते हैं या वो कर सकते हैं परफॉर्म. अक्सर होता है कि आप किसी के साथ बैठो तो फ़लाँ चीज़ जी करनी है. अब करनी तो है लेकिन उस बंदे के पास सलाहियत नहीं है उसको परफॉर्म करने की या गाने की, तो वो आप नहीं करोगे. आप उतना ही कर सकते हो जितना अलाउ करता है आपका टैलेंट. तो इस वजह से ये एल्बम का बहुत इन्फ्लुएंस था. और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम में आप ज़्यादा क्लासिकल गायकी वाले लोग सुनना आना शुरू हो गए. हर बंदा ही ये क्रॉस ओवर टाइप चीज़ ट्राई करता था कि ड्रम्स हो और क्लासिकल टाइप वोकल हो, और फ्लूट भी ज़्यादा आपको सुनाई देती है. पोस्ट 2003 जो है ना, आपको ज़्यादा ये क्रॉस ओवर. एंड देन अल्टीमेटली वो कोक स्टूडियो में वही आइडिया उन्होंने कैरी करने की कोशिश की, ये ईस्ट वेस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था. एंड आई मीन दैट इज़ द इम्पैक्ट जो इस एल्बम का था. और अभी भी लोग इसको बहुत शौक से सुनते हैं. और मुझे अक्सर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक पीपल हैव रियली रिस्पॉन्डेड टू दिस रिकॉर्ड. मेरी नज़र में वो सारी जो तीनों एल्बम्स हैं ना, वो सारे सॉर्ट ऑफ वन आफ्टर द अदर उसी आइडिया को लेके डेवलप करता गया है. बट हर एल्बम का अपना साउंड है. सप्तक का एक डिफरेंट साउंड है, और जो लास्ट वाली आंदोलन जो उसका एक अपना, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा हैवी है. सो मैं ये भी नहीं चाहता था कि संपूर्ण अगर आई है तो अगला एल्बम भी एक संपूर्ण 2 हो, फिर उसका अगला एल्बम, आई डिडंट वांट टू कीप दैट. सो वो बड़ा कॉन्शियस एफर्ट था कि उस तरह के दोबारा नहीं रिपीट करने गाने. सो आई थिंक आई वाज रीजनेबली successful with that. Yeah. So and they all sound different as well. The 3 records,
उनकी हर एक की अपनी साउंड है। तो ये चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए बड़ा आपको थोड़ा ओवरव्यू एक रखना पड़ता है तो बड़ा बारीक का, बट यू कैन लाइक हैव टू हैव द एबिलिटी कि आप ज़रा स्टेप बैक करके देखें कि अच्छा ये जा किधर रहा है और इसमें कितना यू नो लाइक इज़ इट समथिंग दैट यू वांट टू स्पेंड इतना टाइम, क्योंकि आप जब डिसाइड करते हो तो ठीक ठाक टाइम लगता है इसको ख़त्म करते हैं, तो वो सारी डिसीजन लेनी पड़ती हैं। बट इफ़ समवन लाइक्स द फर्स्ट record, they'll probably like all the albums, but they'll probably be able to identify कि ये गाना उस एल्बम का है, ये गाना उस एल्बम का है। ये मतलब घूंघट और किनारे जो है वो एक अलग वाइब के, सही वो अलग वाइब के गाने हैं। फिर सेकंड एल्बम के चल बुलिया, झोंक रांझन, आंदोलन, हंसदोन, वो एक अलग किस्म की वाइब है उसकी। और जो पहले वाली है वो सबसे स्लो और मेलो जो है वो पहली एल्बम है। लोगों का उल्टा होता है, वो होता है कि वो स्टार्ट करते हैं एक अग्रेसिव एल्बम के साथ और फिर वो मेलो होती जाती है। इधर उल्टा हुआ है कि इधर वो पहला एल्बम जो था वो सबसे मेलो साउंडिंग है and it kind of like just gets more intense record by record. I would like to specifically talk about how you and the band are able to sort of perfectly capture some of the emotions of the music. So would love to learn a little bit about your approach to just how you compose some of these ideas. देखें, जहाँ तक तो मेलोडी होती है, अगर तो वो प्री कंपोज्ड है, जिस तरह यारे मन ब्याह की मेलोडी फिक्स्ड है, वो स्थाई फिक्स्ड है। अब वो आपके है ऊपर के आप उसको किस तरह ट्रीट करते हो, उसके स्ट्रक्चर आप किस तरह बनाते हो, उसकी कॉर्ड वॉइसिंग किस किस्म की रखते हो, लाइक दैट्स एन एस्थेटिक डिसीजन। जो मेलोडी होती है और जो उसका राग या स्केल होता है, जिस टोन पे वो, जिस पिच पे वो सेट होता है, मिसाल है कि एक अगर लो वॉइस सिंगर है तो आप उसे हाई पिच गाने नहीं गवाओगे, बिकॉज वो उसकी वो सो यू हैव वो मैच करना पड़ता है वोकल टोन को, सिंगर को, पोइट्री को, उसको म्यूज़िक के साथ आपको मैच करना पड़ता है। कई केसेस में गाने पहले से लिखे गए होते हैं, जैसे रब्बा जो है वो इंटरेस्टिंग केस है। वो ओरिजिनल जो पॉपुलर हुआ था 70s में, वो हामिद अली बेला साहब ने गाया था। अगर आप वो वाला रब्बा सुने, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, वो राग देश में सेट हुआ है। इट्स गॉट अ डिफरेंट मेलोडी। सो वी वुड टेक ओल्ड मेलोडीज़ एंड देन उसको एम्बेलिश करके, उसको ऑल्टर करके एक डिफरेंट रागा में सेट कर देते थे। तो जावेद ने ये किया था, जावेद अख्तर ने, कि रब्बा उन्होंने एमन के अंदर ही मेड दैट ऑल्टरेशन। ही इज़ एन एक्सीलेंट कंपोजर एंड दैट इज़ द वर्जन जो लोग अब सुनते हैं। बट एक्चुअल रब्बा जो है वो अगर आप सुने वो डिफरेंट है। इसी तरह आजा खां वारिस शाह, अगर आप इंडियन वाला सुने वो बिल्कुल ही कुछ और है, हमारा वाला कुछ और है। हमारा वाला जो है वो डिफरेंटली सेट है। वारिस शाह की वीडियो भी जब ज़िशान ने की थी तो ही केम अप विद ऑल दीज वेरी नाइस विजुअल्स वेयर इट कैन लाइक एंड्स with basically a nuclear war scenario. If you look at that animated video, so that song is about repeated violence, and वो actually वारिस शाह itself was written जो सिखों का मैसेकर हुआ था पंजाब में उसके ऊपर, but वो equally applicable है to what's happening in Gaza, to what's happening with any where there's oppression. In other cases जैसा सज्जन है, उसकी मेलोडी जो थी इट वाज अ सॉर्ट ऑफ होमेज टू तुफैल नियाज़ी साहब। उसका जो वोकल स्टाइल है वो उस तरह सेट किया गया था कि जैसे कि तुफैल नियाज़ी अगर गा रहे होते तो वो उनके स्टाइल के इर्द गिर्द था। या अली मुश्किल कुशा जो सलामत अली खान साहब की बंदिश है, तो उसमें फिर वो उस किस्म की चलन है और गायकी है। वो ऑब्वियसली वो आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपका वोकल टैलेंट आपको अलाउ करेगा। तो लकली जावेद जो था वो इतनी उसकी स्केल थी और टेम्पो उसकी बहुत अच्छी थी। जावेद साहब की टोन, टेम्पो, वो मतलब उस साउंड और उस मटेरियल के लिए ही वाज एक्सीलेंट सिंगर। तो आर्टिस्टिकली वो हमारी बड़ी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन थी। बट वो टाइम के साथ फिर वो डिफरेंट चीज़ें करना चाहते थे, उनको कमर्शियल कंसिडरेशंस भी थी कि बॉलीवुड, और यू नो ही वांटेड टू ऑब्वियसली हैव अ सोलो करियर, तो फिर वो उस पे निकल गए। You know, Sampurna of course is the debut album, and then you know we see it throughout your work is sort of just the cohesiveness of your work. मतलब एक तो you know just
sonically it sounds really spectacular. और दूसरा you know there's a real effort to archive and to sort of tell Yeah. those stories. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें. वो यही था, अगेन इट गोज बैक टू माई डैड, बिकॉज ही वुड ऑफन टेल मी कि यार ये एक बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे ग्रेटेस्ट पोएट्स, ऑथर्स, पेंटर्स, फिलोसफर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इनका कोई, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो आर्काइवल वर्क डन ऑन दिस, देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट्री वर्क डन ऑन दिस. और बड़ा ही एक इतना वैल्यूबल एक टाइम है जो कि हम eventually lose कर पाएंगे. तो that kind of stayed with me and I wanted कि मैं इस बारे में I kind of like do something productive with it. और रिवायत भी इसीलिए is kind of like the culmination of that कि okay, जो भी इस वक्त बज रहा है ट्रेडिशनल काम के जोन में, whether वो कव्वाली हो, whether वो सेमी क्लासिकल हो, ठुमरी गज़ल, जो भी फोक अभी जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है इस दौर में, उसको कैप्चर कर लें और उसकी जो सबसे अच्छी आवाज़ें नोन हो या अननोन हो, एटलीस्ट उसको रख लो, क्योंकि कल को ये चीज़ें लोग जाके पूछेंगे कि किधर है और फिर ये सुनेंगे आके. क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो हमारी प्रमोट करती नहीं हमारे आर्ट को, ना म्यूज़िक को करती है, ना थिएटर को करती है, ना मूवीज़ को करती है. इनको अब बंदा क्या कहे. तो आई जस्ट लाइक आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इन अदर कंट्रीज़. वो हमें बुलाते हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं भेजती हमें. कोई आर्ट का दायरा हमें नहीं बुलाता, यहाँ का कोई भेजता नहीं है. बांग्लादेश से बांग्लादेश के लोग बुलाते हैं, इंडिया से इंडिया के बुलाते हैं, कनाडा से, लाइक दे कंसिडर अस वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री. मेरा अपना मुल्क मुझे इस काबिल नहीं समझता. You know, we sit on arguably one of the richest musical traditions in maybe all of the world, right? Like, Yeah. कितने हजारों ईरान का बड़ा रिच ट्रेडिशन है, हमारा है, इंडिया ऑब्वियसली, अफ़गानिस्तान, ये सारी एरियाज़ जो हैं बड़ी पुरानी, मतलब लाहौर का किला 3000 साल पुराना शहर. तो इसमें इतना म्यूज़िक और इतनी पोइट्री और इतना आर्ट यहाँ बनाया गया है. तो ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है. ये बुढ़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको अपनी नौकरियाँ बस रखनी है. एंड यू लुक एट दैट टेन्योर्स, दे हैव बीन देयर फॉर years and years. No new person comes in, no young person is involved. So it's very sad. जो आपके पास है चीज़ें, उनको तो आप एसेट्स में कन्वर्ट करने को तैयार ही नहीं हो. आप आपकी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है. फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म, थिएटर रहा नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री एक बोतल बेचने वाले ब्रांड के हाथ आपने कर दी कि यही कारण है, तुमको करने दो. हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बोतल बनाने वाली कंपनी हाँ, हमारी स्टोरी बताएगी? नहीं बताएगी. तब हम अगर वो अपनी स्टोरी बताएगी. बिल्कुल, वो अपनी स्टोरी बताएगी और वो बलोची डालेगी कि तो उधर भी बोतल बेच जाए. क्योंकि यार देखो, हमारे ग्राफ में 60% सेल हमारी पंजाब रीजन में, तो अच्छा इसको पंजाबी होना चाहिए. इतना खूबसूरत म्यूज़िक बलूचिस्तान का, सिंध का, KPK का, इतने अच्छे वहाँ आर्टिस्ट आपको मिल सकते हैं. आप इन्वेस्ट ही करने को तैयार नहीं हो यार. ये जो चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, दिस विल बिकम द आर्काइव लोगों के लिए. कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये आने वाले दौर में अगले लगभग 20 साल बाद लोग फिर जब ढूंढेंगे तो उनको फिर ये चीज़ें कहेंगे, अच्छा ये भी होता था किसी ज़माने में, वो यार को क्लासिकल भी गाता था, यार इधर को फोक आर्टिस्ट भी होते थे. ये ख़त्म हो जाएगा सारा. Personally, one of my favorite moments is Gumby talks about this when you have Joke Ranjan, and one of the takes becomes the album version. So, you know, are there other examples of that? And Well, basically, I would write out the parts for each of the guys. So the drummer would get a sketch of what I wanted, and I was particular about certain things, like certain hits. Like उसमें एक है moment towards the end of the song where the band kind of like stops for a second and then there's a drum hit. So like those things are pre-designed, you know. So the person who comes in, like, I don't tell them exactly what to play, but I'll tell them if I need something, like, hey, there's an accent here, you have to stop and hit this. So वो उस किस्म की चीज़ें जो होती हैं, at that point that's what you're dealing with. But there's other stuff where we've had to kind of like, yes, take an entire take, but maybe a section you have to punch in. उसकी transition शायद ज़्यादा improve हो सकती है. But generally when you're dealing with very good players, so it's normally one, they basically play through the thing a few times, and then the only two ways of doing it is either you do 2 or 3 takes, or you pick a take and then you basically develop that.
उसके sections को आप अलग अलग भी कर सको. So like you do the verses first, or if there's a loud section of the song, then you would kind of like do that separately. Same thing with vocals. Like if you've got a very challenging part, you wouldn't do that the first thing. You would probably wait and do the lower, less intense parts first. Because by the time वो गा लेगा वो, तो उसकी आवाज़ वैसी गर्म warm up हो जाएगी. And then you can kind of like go towards the more intense parts instead of starting there and working backwards. Yeah. So it's just understanding के गाने के अंदर, you know, what do you want out of it. एक चीज़ जो आपके काम में बहुत नज़र आती है वो ये भी है कि यू वेरी जुडिशियस विद द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड साउंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल यू नो वी हियर द घड़ा विच इज़ यू नो अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट. बिल्कुल किनारे में जाके हमें वो सुनने को मिलता है. रबाब का इस्तेमाल बहुत मिनिमल है आपके काम में. सितार और रबाब और तबला इन एल्बम्स पे नहीं है, ना ढोलक है. इन एल्बम पे घड़ा है. देयर इज मल्टी परकशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लैटिन परकशन पीट लॉकेट की वजह से वो है. बट एज फार एज आई नो द फ्लूट इज प्रीटी मच द ओनली टोटली देसी इंस्ट्रूमेंट जो इन एल्बम्स पे है. I mean, we're talking about the flute, तो एहसन पप्पू साहब की बात भी करना बहुत ज़रूरी है. मतलब क्या उनके बारे में हम बोले, मतलब somebody who you know forget playing for a second. I mean the fact that वो अपनी flutes बनाते हैं. हाँ, खुद बनाते मतलब हैं. वो बड़े, मैं अक्सर उनको यही कहता हूँ कि वो उनकी नेचर ऐसी है कि वो अपने आप को पुश, मतलब प्रैक्टिस फ्लूटिस तो उनकी बहुत हार्डकोर है, बट वो एक माइंडसेट उनका है ना, वो सेशन प्लेयर हैं, सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है. तो मुझे अक्सर लगता है कि वो बड़े अंडर यूटिलाइज रहे हैं. मैं तो उनको पूरी तरीके से उनके साथ लर्न करता हूँ उनसे, और वी ट्राई एंड लाइक डू एवरीथिंग टुगेदर. लेकिन एक ऐसे बंदे की इतनी नॉलेज हो, और इस तरह 2-3 लोग यू नो और भी हैं, तो इनको इन अदारों पे अच्छी पोजीशंस देनी चाहिए. ऐसे लोग जो हैं ये ज़्यादा देर मतलब अब रहेंगे. ये लास्ट जनरेशन अब चल रही है ना, देखिए इसके बाद ये लोग चले जाएंगे, फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको ये एक आपकी ट्रेडिशन के साथ कनेक्ट करे. नए बच्चे हैं अच्छे जो बजा रहे हैं, 2-3 अच्छे हैं, पर कोई एक उनका एक्सपीरियंस नहीं है. वो अगर एक 22 साल का है, या किधर 22 साल का बंदा और किधर 66 ईयर्स का बंदा, मतलब कि उस बंदे के पास 40-50 साल का एक्सपीरियंस है डेली ये काम करने का. तो आप compete तो नहीं उसके साथ करोगे, आप सीख ही सकते, आप भी उनसे ही सीखोगे. और ये इनसे आप पूछें जो बजा रहे हैं, वो भी यही कहेंगे जी हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं. लेकिन उन बड़ों को कोई पूछ नहीं रहा. We talked about the Digital Fidelity Studios being sort of an institution. Thanks for also opening it up to us. बहुत सारे musicians यहाँ पे आए. Would love to hear about your experience working with some of the people that came in. I mean, going back even to sort of Fables of Kant to Ali Azmat's Clashin Folk. जो जनरेशन हम लोगों की एज ग्रुप के लगभग है ना 40s-50s की, वो लोग जो थे वो रिहर्सल्स वगैरह उसका उनको बड़ा एक सॉलिड फाउंडेशन थी सबकी. सो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो सॉर्ट ऑफ लाइक जिस तरह से स्टूडियो डेवलप होता गया, तो वो लोग भी वहाँ काम करते रहे, जिसमें गम्बी था, आमिर अज़हर था, समीर था, पप्पू साहब ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग इधर आके रिकॉर्ड करके आई थिंक काफ़ी लोगों ने लर्न भी किया है यहाँ. तो वो मेरी हमेशा एक रही थी पॉलिसी. उस ज़माना कुछ और था यार, उस 2000 में 90s में हम 2000 में वी ऑल यूज्ड टू वर्क टुगेदर बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैडंट कम इन वेयर एवरीथिंग कुड बी डन ऑन अ लैपटॉप बाय वन गाय. सो यू नीडेड टू हैव अ गुड टीम एंड पीपल न्यू कि अगर म्यूजिशियंस अच्छे नहीं होंगे तो गाने जो हैं वो अच्छे बजेंगे ही नहीं, अरेंजमेंट्स अच्छी नहीं आएंगी. तो उसमें फिर लोग मजबूर होते थे. जब से सिर्फ सिंगर्स की जब बात आ गई ना कि फोकस सिर्फ एक सिंगर के ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ हम खर्चा क्यों करें, लोगों को क्यों हायर करें, हम एक बंदा रखते हैं, सारा कुछ लैपटॉप पे वो बना देगा, हम आके गा देंगे. जिस तरह आपने अली के एल्बम की बात की, अब वो ग्रुप जो था उसने पहले पूरे वो गाने सारे रेंज और रिहर्स रियल टाइम स्टूडियो पे किए, उनकी रिहर्सल्स हुई गानों की, फिर जाके वो गाने रिकॉर्ड हुए. हम लोग अभी भी वो ओल्ड स्कूल तरीके से ही काम करते हैं. जो अभी जो एल्बम हम लोग कर रहे हैं, जो नुसरत साहब का ट्रिब्यूट है शहजाद अली खान के साथ,
इसी तरह हम रिहर्सल्स अपनी अपलोड करते हैं, यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो वी अपलोड वंस वी गॉन थ्रू द अरेंजमेंट्स, we will upload the entire rehearsal and we also will live with it and figure out कि ये part इतना होना चाहिए, इसको निकाल दें, लेंथन करें, सोलो छोटी कर दें, लंबी कर दें, ये थीम इधर दोबारा रिपीट होगी या नहीं होगी. बट वो ग्रुप डिसीजंस होती हैं, वो मेरी अकेले की नहीं होती. तो यही तरीका होता है सही इसको रियलाइज़ करने का. कोई भी सक्सेसफुल आप चीज़ लेंगे ना, तो उसकी ये हो सकता है सेंट्रल फिगर एक बंदा हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक बड़ी ज़बरदस्त टीम होती है. कहने को मिकाल हसन बैंड, लेकिन काम तो सब ने किया हुआ है, सबके टैलेंट्स हैं. इट्स हाउ यू यूज़ देम, लाइक आप लोगों को किस तरह असेंबल करते हो, टीम वर्क आपकी कैसी है, टीम्स को आप किस तरह लीड करते हो. Mikal would love to also talk about the technicals of sound production and sort of how you approach it. एक आध इंटरव्यू में मैंने सुना है कि you have this approach where some things are sort of on the left channel or some things on the right. तो वो थोड़ा सा would love to I mean वो समझना तो I'm sure नहीं बड़ा इजी है. जब हम एक लाइव रिकॉर्डिंग मिक्स करते हैं ना, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना लोगों का लेआउट, वो उसी तरह सम वॉट ऑडियो में भी लेड आउट होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स बैठा है, एक सेंटर में बंदा है, उसके लेफ्ट पे एक बंदा बैठा है, उसके राइट पे एक बंदा बैठा है, तो उसी चीज़ को आप जब सुन रहे होगे तो आप नोटिस करोगे कि वो जो बंदा इधर पे बोल रहा है वो इस साइड पे आ रहा है, वो जो उसको पर्सपेक्टिव है. बिकॉज सारी चीज़ें आप सेंटर नहीं कर सकते. जो मेन एलिमेंट्स होते हैं विच इज़ योर ड्रम्स के किक और स्नेयर, राइट, योर लीड वोकल्स इन योर बेस गिटार, ये चीज़ें नॉर्मली सेंटर ऑक्यूपाई करती हैं. मीनिंग कि इक्वली लेफ्ट और राइट साइड से आती हैं स्पीकरों के. जो चीज़ें आप पैन करते हो वो इसलिए पैन करते हो ताकि उसको लेफ़्ट टू राइट पर्सपेक्टिव लोगों को सुनते वक्त मिले. प्लस बड़ा बोरिंग हो जाता है अगर हर चीज़ ही सेंटर होगी, वो एक ही डायमेंशन से आ रही है, कोई इधर से नहीं आ रही चीज़, कोई इधर, दोनों तरफ से वही सेम इन्फॉर्मेशन आ रही. इट्स रियली दैट सिंपल. मेरा कोई इतना कोई इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं अदर देन इफ़ आई एम मिक्सिंग अ बैंड, तो जिसका भी सोलो होगा वो सेंटर में होगा. अगर दो सोलोज हैं डबल हैं तो या तो एक दूसरे के ऊपर होंगे, थोड़े से पैंड होंगे. और जो सिंगर्स की पोजीशनिंग है वो बेसिकली जिस तरह आप उसको विजुअली देख रहे हो उसी तरह होगी. ड्रम्स की पोजीशनिंग जो होती है वो सबसे जो एक्चुअल स्टीरियो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इन रियलिटी वो ड्रम्स हैं, बिकॉज उसके लेफ्ट और राइट साइड्स होती हैं. ऊपर दो ओवरहेड माइक्स लगे होते हैं, एक इस साइड को कैप्चर कर रहा है, एक इस साइड को कैप्चर कर रहा है. सो द ड्रम किट इज़ द ओनली थिंग दैट एक्चुअली फिजिकली द साउंड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम द फर्स्ट टॉम टू द फ्लोर टॉम, राइट. फर्स्ट टॉम इधर होता है, फ्लोर टॉम यहाँ होता है. तो आप उसको जब म्यूजिक में दिखाओगे, अगर ड्रमर बजा रहा है तो उसका पहला टॉम इस तरफ है, तो you would pan it that side and you would pan the floor tom this side. So that's how I do it. That's how most people do it. Or there's different mixing ideas that people have. One is what they call the LCR method, which is left, center and right. Everything in that is either centered left, either on the center or on the left channel or on the right channel. उसकी अपनी एक मिक्स फिलॉसफी है कि जो भी चीज़ है वो या तो सेंटर में होगी या वो लेफ्ट साइड पे आएगी या राइट साइड पे आएगी. फिर दूसरी फिलॉसफी कुछ थोड़ी डिफरेंट है कि वो पैनिंग इतनी एक्सट्रीम नहीं करते, कुछ चीज़ों की कम होती हैं, कुछ चीज़ों की ज़्यादा होती हैं, डिपेंडिंग कि आपकी अरेंजमेंट कितनी डेंस है. इफ़ द अरेंजमेंट इज़ वेरी स्पार्स देन पैनिंग इन दैट परस्पेक्टिव कैन रियली वर्क. इफ़ द अरेंजमेंट इज़ वेरी डेंस देन ऑब्वियसली LCR करना फॉर एवरीथिंग would crowd even those sides. Then you would kind of like designate different spaces to the instrument depending कि वो equalize किस तरह हुआ है, उसका रोल क्या है arrangement के अंदर. Really depends कि म्यूजिक बता क्या रहा है आपको कि किस चीज़ को कहाँ प्लेस करना है. I mean, I think this is consistently a hallmark of your work. Like you make it look and feel so simple. है simple. Actually simple है. Yeah, because वही ना कि वो म्यूज़िक के बारे में बात करना जब आप उसको एक्सप्लेन करने बैठते हो तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है. वो जब एक्चुअली हो रहा होता है तो आप वो डिसीजन लेते हो जो उसको सूट करता है. इट कुड बी कि वो LCR वाला अप्रोच किसी के लिए नहीं वर्क कर रहा, कुड बी कि वो उसको एक डिफरेंट किस्म की उसकी अरेंजमेंट ही ऐसी है. फॉर एग्जांपल इट कुड बी कि वो द सॉन्ग इज़ ऑफ अ नेचर के उसमें
आपको इतनी वाइड पैनिंग की ज़रूरत ही नहीं है. बट इफ़ यू गॉट लाइक अ ट्रैक विद लॉट्स ऑफ लाइक things that are panning, then you want to emphasize that. Then you would have a wide perspective कि चीज़ इधर से उधर जा रही तो सुनाई दे मुझे. You know, it would have an impact. Yeah, one example that comes to mind is when Pete Lockett is playing on Yali. Yeah, you can hear exactly. So many things. Because वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आप वीडियोस देखो ना, तो इतनी सारी percussion की छोटी छोटी instruments हैं. So you kind of want to capture that as he's moving from one thing to the next, you can also hear it moving in the mix. That's the whole idea. कि उसको sonically किस तरह हम capture कर सकते हैं. Talk us through just your relationship with Night Song and you're reimagining some sort. जो पूरा album है, हाँ. And it's sounding spectacular. You're also, you know, जैसे जो आपका वो hallmark है of sort of consistently fine tuning and perfecting. Like I've been listening to the rehearsals and like you can hear it's palpable. That from how it's kind of like changed from that to that. बिल्कुल. तो अभी वो सारा live, वो rehearsal भी live और वो show भी live है. वो basically that idea came about because I had met Shehzad भाई about 5 years ago, right about the time जब रिवायत हम record कर रहे थे. तो मेरी जो साउंड इंजीनियरिंग जो मेरी टीम है ना, मेरे दोस्त भी हैं, इमरान भाई और एहसान. तो वीव नोन ईच अदर सिंस 1996-97 एंड इमरान जो साउंड सॉल्यूशंस के ओनर हैं, इस वक्त वो माशाल्लाह सबका काम, सबके प्रेफर्ड इंजीनियर और साउंड सेटअप जो है साउंड सॉल्यूशंस का ही है. तो इमरान भाई जो थे वो बड़े एक मास्टरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं. दैट इज़ हाउ मेरी दोस्ती उनसे इस तरह हुई थी. वो जावेद साहब जो थे, जावेद अख्तर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था. तो जावेद ने मुझे बताया कि यार एक बंदा है, हमारे पास एक वो एनालॉग डेस्क होता था मैकी का, उसमें कोई मसला आ गया किसी चैनल में. तो जावेद ने मुझे कहा यार वो एक बंदा है, वो भी मिक्सिंग डेस्क बनाता है हॉल रोड पे. तो उससे उसको बुलाते हैं. दैट्स हाउ इमरान केम टू माई स्टूडियो. और वो हमारी फिर दस्ती उधर ही एकदम दोस्ती हो गई. बस वो दिन और आज का दिन हम लोग, अभी भी उनका ही फ़ोन आया हुआ था, तो हम लोग रेगुलरली मिलते हैं. मेरे सारे शोज़ पैसे हो ना हो करना हो नहीं हो, उनको मैं कहता हूँ कि भाईजान ऐसे नहीं है, वो फिर भी कर देते हैं. तो बहुत उन्होंने सपोर्ट की. ये सारा स्टूडियो जो है, ये इमरान भाई ने इतनी हेल्प की, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही, जब ये आग लगी है तो आई वाज जस्ट लाइक टोटली डिस्ट्रॉयड एंड डेवास्टेटेड. सारा इक्विपमेंट जल गया, सारी रिकॉर्डिंग्स जल गई, लाइक 23 इयर्स वर्थ ऑफ वर्क, बैकअप्स चले गए, सब कुछ. वो सारा उस बैकअप भी उसी जगह में पड़ा हुआ था ना, हार्ड ड्राइव पे. तो सारा कुछ ही जल गया. तो जब वो मेन सिस्टम जला तो वो भी गया. सो आई एक्चुअली हैड नथिंग. तो इमरान भाई ने फिर पर्सनली आके ये सारा जो आप देख रहे हैं अंदर, सारी साउंड ट्रीटमेंट उन्होंने खुद करवाई, खुद खर्चा करके. गो फंड मी कैंपेन, मेरा जो पुराना दोस्त और मैनेजर होता था दाऊद खान, उसने और लूक ने, जैन और लूक जो फ्लक्स मीडिया के जो बॉयज़ हैं, उन्होंने सेटअप किया मेरे लिए. मैंने कुछ नहीं किया, इन सब ने ये मुझे करके दिया. और फिर लोगों ने उस पर पैसे भेजे कि फिर से तू सामान ले. उस पैसे से फिर ये सामान आया. तो ये लिटरली लोगों ने लगा के दिया, क्योंकि आई हैड नो मनी. आई ऑनेस्टली लॉस्ट एवरीथिंग इन दैट फायर. एंड आई हैड लाइक वेरी एक्सपेंसिव बुटीक टाइप नहीं होती जो गियर, जो मिलती भी नहीं है, वो ख़त्म हो गई. वो तो 70s 80s में बननी, 90s में ख़त्म हो गई थी. सो आई जस्ट हैड टू बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ गियर. बट थैंकफुली टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि मुझे यार हर चीज़ दोबारा नहीं लेनी पड़ी. You know, I didn't have to get everything, but yeah, we lost a lot of gear. Yeah. But I mean, it speaks to sort of your resilience and just your drive to continue doing. नहीं, बीच पे I didn't want to. I really wanted to stop and not think about doing music anymore. So for quite a long time, and then ये जब नुसरत वाला program, इस तरह मुझे idea है, because I was like if I keep on doing the older classical oriented stuff, I wasn't finding the kind of vocal talent जो उसको कर सके properly पाकिस्तान के अंदर. जो लास्ट बंदा जो बड़ा अच्छा उसको गा रहा था वो असद अब्बास था, and he passed away. Yeah. He had kidney failure, so he passed away. Very young. Very young, yeah. उसके बाद I just wanted to find something के इसको अपना हम टच रखें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ट्राई आउट करें जो हमने ट्राई पहले नहीं की.
तो जब शहजाद भाई मिले तो ये कवाली वाला जो आइडिया शुरू हुआ, मैं कहा चलो अब इसको अब कर कुछ देखते हैं। एंड आई हैड अ रेजिडेंसी प्रोग्राम विद द आगा खान म्यूज़ियम जिसमें हमने अपना पिछला वाला एल्बम का काम किया। तो आई हैड अ लाइनअप जो मैंने टोरंटो में बनाई। और उस पर जो हमारे साथ जो काम कर रहे थे वोकलिस्ट मुजीब रिजव्यू भी लाहौर के हैं। तो मुजीब इज़ वेरी गुड, बट वो है क्लासिकल सिंगर लेकिन गाता बड़ा अच्छा है वो। तो वहाँ के जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे अमीर अली भाई साहब, वो ही वाज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इस्लामिक आर्ट। वो है भी इस्लामिक आर्ट का म्यूज़ियम। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान से इधर व्हाट डू यू गाइज एक्चुअली हैव, बिकॉज सो मच ऑफ द स्टफ दैट्स कमिंग थ्रू is Iranian, or it's from India, predominantly from India. They would have artists coming in from Morocco, उधर से था इनके पास, वेस्ट अफ्रीका से। तो उन्होंने कहा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा इतना बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी कनाडा के अंदर, तो इनके लिए होना चाहिए कुछ। तो मैंने कहा आप इस तरह करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, कोई ऐसी चीज़ पकड़ें जो लोग काफ़ी टाइम से याद जिसको करते हैं जो उनकी मेमोरी में है। तो बिकॉज आई न्यू कि शहजाद गा रहा है एंड आई हैड हर्ड हिम एंड आई न्यू कि ही कुड सिंग नुसरत रियली वेल। तो आई सजेस्टेड टू हिम दैट लेट्स रीडू दैट रिकॉर्ड लाइव एज अ ट्रिब्यूट टू नुसरत। एंड उस रिकॉर्ड का कनेक्शन कनाडा के साथ ये है कि माइकल ब्रुक जिसने प्रोड्यूस की थी नाइट सॉन्ग, ही लिव्स इन कनाडा, ही इज़ गुएल्फ का रेजिडेंट है। And so I was like, there is this sort of like tenuous connection between Canada and Pakistan via Michael Brook and that last record जो नुसरत ने 96 में किया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम उस पर हमने ये डेवलप किया and then we took that show to Toronto. So the show that you see now is the first performance जो उस मटेरियल की हुई थी after those rehearsals were done, जो कि हमने लाहौर में की थी, और यही शो फिर कनाडा गया। How's the reception been so far? बहुत ज़बरदस्त। वही ना, वो मुझे उसका फ़ोन आया जब इन्होंने अनाउंस किया ना शो, तो मुझे अमीर अली साहब का फ़ोन आया कि 3 घंटे के अंदर ये बिक गया है और इतनी डिमांड आ रही है कि वी आर थिंकिंग ऑफ अनाउंसिंग अ सेकंड शो। And you did? Yeah. Right after you've done the first one, so you take an hour break and you come back and do another 2.5 hour set. So वो भी बिक गया। वो वाला शो भी सोल्ड आउट हो गया। इतना सक्सेस, इतना पसंद आया लोगों को एंड इट वाज रियली बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। बिकॉज आई वाज आल्सो कि यार शहजाद को नहीं किसी ने कभी सुना, हमने नुसरत का मटेरियल पहले कभी उस तरह तो कभी पेश नहीं किया। सो वो था कि विल पीपल एंजॉय इट, बट वी हैड अ वेरी गुड रन इन कैनेडा ओवर द लास्ट 4-5 years. Like every time I play there, तो we pack the audience. हमारी audience size जो है, we can play medium sized rooms to bigger venues, so we always do sell out. और उसकी वजह एक ये है कि I don't overdo it, मतलब मैं थोड़ा करता हूँ लेकिन फिर उस पर सब आ जाता है। Even when you took this show to Karachi, Lahore and Islamabad, even there, you've played to packed audiences. Yes, we sold out all those shows. और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि नुसरत साहब को एक तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये आई थिंक वो एक हमारी कोर फॉलोइंग है जो कि हम जब करते हैं तो दे नो दे गोना एक्सपीरियंस अ ग्रेट शो, एंड वी ट्राई एंड लाइक कैप्चर दैट इन द लाइव जो हम चीज़ें, सो दैट if in case you couldn't see it, you can still experience it, and hopefully that serves as an advertisement for you coming out to the next one. तो जब हम अनाउंस करें कि हाँ अभी हम ये वाला शो प्ले करने आ रहे हैं, तो people are like oh shit, वो जाके देखना है। मेरी हमेशा स्ट्रेटजी ये रही, we rehearse the songs first, work on the arrangements, work on the rehearsals, then we take it out on tour, then we release the record. So ये step by step every time। संपूर्ण का भी आप देखेंगे, वो पीट लॉकेट वाला शो, पहले वो शो है, उसके बाद वो एल्बम आई, उसके बाद वीडियोस आए। इस तरह मैंने एवरी टाइम इसी फेज ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो किया। और आई थिंक एक चीज़ जो और भी बहुत फैसिनेटिंग है अबाउट द वे यू अप्रोच लाइव शोज इज दैट ईच ऑफ देम हैज अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। या इट्स डिफरेंट, एवरी शो इज डिफरेंट। सो इवन दो गाने शायद हो सकता है वही नहीं, लेकिन द वे दे डेवलप इट चेंजेस फ्रॉम शो टू शो। वो वेन्यू पे डिपेंड करता है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, साउंड पे डिपेंड करता है। कई बार वही गाने जो हैं वो हम वी जस्ट शॉर्टन देम, समटाइम्स वो एक एक्सटेंड हो जाते हैं,
So depending on कि आगे से आपको क्या response मिले, क्योंकि they're already familiar with the song by that point. So then when you start changing it, they're like, oh wow, ये कोई नई चीज़ आ गई, इसके अंदर नया section आया है, या like there's something fresh here. Yeah. But again वो ये है कि you need a listening audience. तो वो listening audience जो है ना, उसको अब cultivate करना और उसको encourage करना, that is really important. Mikhail, this has been a fascinating conversation. Would love to end with what can fans expect from you going forward? When is the record coming out? Is the record coming out? Yeah. So we'll put out the Night Song wala album as a tribute to Nusrat, and we're gonna call it the Night of Song. It'll have all the songs from Night Song, which we've kind of like rearranged and added parts to. In many cases, there are songs in there जिसमें नुसरत साहब ने, for example, एक अस्थाई कई भी है, लेकिन देयर इज़ नो, उसका अंतरा नहीं है कोई, तो वो अंतरे फिर फ्रेश कंपोज किए, शहजाद ने बैठ के उनको ऐड ऑन किया, लिरिक्स भी और मेलोडी भी, और फिर हमने जो उसके नीचे जो पार्ट्स वगैरह कंपोज किए म्यूज़िक के, उसकी रिफ्स और उसकी जो डिफरेंट मेलोडिक आइडियाज़ हैं, so we came up with those. So I mean, it's kind of like, it is a reinterpretation, but we've added on significant things compositionally. So it's not a typical, वो नहीं होता कि cover songs हैं. It's not really done in that way. It's not a cover per se, but definitely each of the songs is उसका idea Night Song पे ही उसको लेके हमने expand किया हुआ. I've heard some of the rehearsals and like you're actually even adding lyrics too. Like आप वही ना, completely composition ऐड की है हमने. वो idea अगर आप Night Song सुनोगे तो आपको वही चीज़ सुनाई देगी, but उसका एक idea होगा and there's no follow up verse. But here we've added up follow up verses which have to link back to that original composition जो स्थाई थी, उसके साथ link करता है वापस. So वो जो सुनने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ, ये चीज़ जो है ये एक्चुअली उस गाने में नहीं, ये ऐड हुई है. So in that way I'm not sure कि इस वर्क को किस तरह हम क्लासीफाई करेंगे, because it's not really 100% a cover, because उसमें ओरिजिनल काम भी मिक्स हुआ है, ऐड किया हुआ है हम लोगों ने, तो पता नहीं इसको किस तरह हम देखेंगे. But yeah, definitely it's a tribute record. But then the writing style is sort of like जिस तरह नुसरत साहब कंपोज करते थे अपनी मेलोडीज वगैरह, वो राइटिंग स्टाइल जहाँ नया आया है तो उसको उसी स्टाइल में हमने कोशिश की कि रखा जाए. Yeah, any last sort of words of advice for any young musicians or any young artists who are sort of just looking around and maybe not seeing a lot of hope? तो आप how would you sort of यही कहूँगा कि कोई होप नहीं है. और क्या कहूँ. Get a job. Yeah, so thank you so much. Thank you.